دن کے لیے جو اس نے ہماری زندگی میں برپا کیا، اور تمام دیکھنے والوں کے لیے جو ہمیں پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، اور ان سب زندگیوں کے لیے جو آج خدا کے گھر میں موجود ہے، اس کی آواز کو سننے کے لیے۔ اور سب سے زیادہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہیں کہ ہم آج اپنے زندہ خدا کے تخت پر اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا! خدا کے زندہ کلام کے لیے زور سے تالی بجائیں، اور اس کی قدرت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے مطابق دیکھیں۔ میرے عزیزوں، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بے شک کیسی بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اپنے زندہ خدا کے آگے جب جھکتے ہیں تو وہ ہمارے حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے۔ اس کا امر بہت بڑا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے درمیان جب آتا ہے تو ان زندگیوں کے حالات تبدیل کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا! تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ خدا ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ آج یہ سیکھیں گے کہ خدا ہماری زندگیوں پر ظاہر کیسے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم خدا کو اس کے آگے جھکتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی تو خدا ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، انسان جب کسی شخص کے بارے میں دیکھتا ہے یا سنتا ہے، جب اسے ملتا کبھی نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا اس کے بارے میں حد تک سوچتے ہیں، تو وہ اس کی تصویر، اس کا تصور ہمارے ذہنوں میں ابھر آتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہم اگر کسی بندے کو جانتے نہیں ہیں، اسے ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ ہماری اس سے کبھی ملاقات کبھی نہیں ہوئی، جب اس کے بارے میں سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کا تصور ہمارے ذہن میں عکس اس کا بن جاتا ہے کہ وہ کس طرح کا شخص ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ کس طرح کا چلنا پھرنا بیٹھنا اس کا ہوگا۔ تو میرے ذہن جب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں برپا ہوتا ہے، ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو ہمارا تصور دھندلا ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ میں نے تو اس کے بارے میں ایسا دیکھا تھا، ایسا سوچا تھا، لیکن یہ تو اس کے برعکس نکلا، اس کے مختلف نکلا۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم سوچتے ہو رہا ہے لیکن ہوتا کچھ اور۔ یہ ہے تصور۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے، کیا کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے خدا کو؟ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا۔ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ روحانی ہے۔ وہ روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ جسمانی آنکھ روحانی کو نہیں دیکھ سکتی۔ جسمانی آنکھ روحانی کو نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ روحانی خود اپنے آپ کو جسمانی پر ظاہر نہ کرے۔ سمجھ لگی ہے کیا کہا؟ تب تک روحانی خود جب اپنے آپ کو جسمانی آنکھ پر ظاہر نہ کرے، تب تک جسمانی آنکھ روحانی کو نہیں دیکھ سکتی۔ خدا کا ظاہر ہونا، خدا کی قدرت کا ظاہر ہونا۔ اب اس میں سے ایک سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ
خدا اپنے آپ کو ہم پر کیسے ظاہر کرتا ہے؟ کبھی سوچا کہ خدا اپنے آپ کو ہم پر کیسے ظاہر کرتا ہے؟ پتہ ہے کیسے ظاہر کرتا ہے؟ اس میں دیکھیں گے کہ خدا کا کلام جو زندہ کلام ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا 5 ذریعے سے انسان پر ظاہر ہوتا ہے۔ 5 ذریعے سے۔ پہلی، خدا کا ظہور ان چیزوں پر ہمیں نظر آتا ہے جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ کبھی دیکھا ہے؟ پھولوں کو دیکھا ہے؟ تتلیوں کو دیکھا ہے؟ پرندوں کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ پھلوں کو دیکھا ہے؟ ان رنگوں کو دیکھیں، ان پرندوں کے رنگوں کو دیکھیں جس پر ہمیں خدا کی قدرت نظر آتی ہے، جس پر ہمیں خدا ظاہر ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ میں ہوں۔ ہاللیلویا۔ آسمان کو دیکھیں، کتنا بڑا آسمان ہے۔ اگر ہم ایک چھت ڈالیں تو اس کے اندر بیم ڈالتے ہیں، اس کے اندر پلر کھڑے کیے جاتے ہیں، لیکن آسمان دیکھیں نہ اس کے اندر کوئی بیم نظر آتا ہے نہ کوئی پلر نظر آتا ہے۔ کتنا وسیع سوال ہے۔ یہ ہے خدا کی قدرت، اس کا ظاہر ہونا۔ اور دوسرا، انسان کی عقل اور دماغ اور دل و سوچ پر، اس کے ذریعے خدا ہمیں ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کی صورت پہ، انسان کے دل و دماغ پہ، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ سب سے عظیم بات کہ خدا ہمیں انسان کے روپ میں ہم پر ظاہر ہوتا ہے جب انسانوں کو دیکھتے ہیں ہمیں انسانوں کے روپ میں خدا بناتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، وہ اپنے بیٹے یسوع المسیح کے روپ پر ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے روپ پر ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر اپنے وفادار بندوں کے روپ، جو راست باز ہیں، جو وفادار ہیں، جن کے نام کلام میں لکھے ہیں، ان کے ذریعے ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیں، دانیال کو دیکھ لیں، صدرک مسکر عبدالنجور کو دیکھ لیں، ان کے نام بائبل میں لکھے ہیں۔ موسیٰ کو دیکھ لیں، داؤد کو دیکھ لیں، ابراہیم کو دیکھ لیں، نوح کو دیکھ لیں، کہ خدا جو کلام میں لکھا ہے ان وفادار بندوں کے حضور پر ہم سے وہ ملاقات کرتے ہیں، ہم سے وہ ملتا ہے۔ بے شک جب تک ہم خدا کے کلام کو نہیں سنتے، جب تک ہم خدا کی باتوں کو نہیں مانتے، تب تک ہم انجان ہیں، بے خبر ہیں، کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں، ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ اور 5ویں بات، پھر خداوند ہمارے ساتھ تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم اس کا زندہ کلام پڑھتے اور سنتے ہیں، اس کی بائبل کے وسیلہ سے، اس کے کلام کے وسیلہ سے وہ ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آیا ہم دیکھیں گے ایوب کی کتاب، اس کا 12 باب اور اس کی 7 اور 10 آیت میں سے پڑھیں گے۔ ایوب کی کتاب، اس کا 12 باب اور اس کی 7 اور 10 آیت میں۔ ذرا بچوں کو کنٹرول کریں، بچوں کو کنٹرول کریں پلیز۔ ہاں جی پڑھیں۔ بیماروں سے پوچھو۔ ہاں جی، کس سے پوچھو؟ ہاں جی بولیے۔ وہ تجھے سکھائیں گے، وہ تجھے سکھائیں گے۔ ہوا کے پرندوں سے پوچھو، ہوا کے پرندوں سے پوچھو، دریافت کر اور تجھے بتائیں گے۔ ہاں جی، زمین سے بات کر اور تجھے سکھائیں گی۔ ہاں جی، سمندر کی مچھلیاں تجھ سے بیان کریں گی۔ سمندر کی مچھلیاں تجھ سے بیان کریں گی۔ ہاں جی،
कौन नहीं जानता उन सब बातों में खुदा ही का हाथ है। वो कौन नहीं जानता इन सब बातों में किसका हाथ है? खुदा का हाथ है। परिंदों से पूछो, मछलियों को देखो, वो तुझे बताएंगी कि ये कुदरत किसकी है? खुदा की। हाँ जी, आगे। जिसने ये सब बनाया, जिसने ये सब बनाया, उसी के हाथ में हर जानदार की जान है। उसी के हाथ में हर जानदार की क्या है? जान है। ये जाहिर हो रहा है खुदा पर। उसकी कुदरत को देखें, उसके निजाम को देखें, उसके हर बात को देखें, क्योंकि वो किस तरह इंसान पर जाहिर होता है। क्या हम कभी महसूस करते हैं खुदा को? कभी किया खुदा को महसूस? दाऊद नबी अपने ज़बूर में क्या बयान करता है? हम 19 ज़बूर देखेंगे और उसकी पहली और 4 आयत। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है जी, और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। आसमान उसका जलाल जाहिर करता है और जमीन उसकी दस्तकारी। दस्तकारी का मतलब समझते हैं? दस्तकारी जो हाथ से, हैंडमेड, जो हाथ से चीजें बनाई गई है, दस्तकारी कहते हैं। खुदा की खूबसूरत कायनात दुनिया, खुदा के सब जलाल उस चीजों में जाहिर होते हैं। खुदा की सूरत इन चीजों पर जाहिर होती है। उसकी दस्तकारी। आसमान को देखें, चांद सितारों को देखें। क्या हम इस चीजों को जब देखते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? ये इंसान की कारीगरी है? किसकी कारीगरी है? ये खुदा की कारीगरी है। इसलिए इस बात पर खुदा हम पर जाहिर होता है। अब रोमियो की किताब और उसका 1 बाब और उसकी 20 आयत में देखेंगे। रोमियो 1 बाब और उसकी 20 आयत। जी, क्योंकि उसकी उन अनदेखी सिफतें यानी उसकी असली कुदरत और इलोहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। उनको कोई उज़र बाकी नहीं। उनकी सब चीजें हमें जब खुदा की चीजें नजर आती हैं तो हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि ये सब चीजें हैं जो खुदा ने बनाई है। उनको अपने आप पर कोई उज़र नहीं, कोई फख्र नहीं। कोई फख्र है खुदा की बनाई चीजों को? वो अपने आप पर फख्र करती है। फख्र इंसान जो इस बात को नहीं मानता कि खुदा मुझ पर कब जाहिर होता है और मैं कैसे उसे मालूम करना चाहता हूं और मैं किस तरह उसे मालूम करूं। अब देखेंगे अय्यूब की किताब उसका 26 बाब और उसकी 14 आयत में क्या लिखा है। बातें हमें कलाम ही से मिलती हैं और इस बातों को समझने के लिए हमें खुदा की हजूरी को, उसकी कुदरत को समझना है, अपनाना है, उस पर गौर करना है कि इंसान और खुदा के दरमियान क्या रिश्ता है। हाँ जी, पढ़े अय्यूब। देखो ये तो उसकी राहों के फक्त किनारे हैं। ये उसकी राहों के फक्त किनारे हैं। जमीन, आसमान, पहाड़, उसकी फकत जो हाथों के हैं क्या है? किनारे। हाँ जी, आगे। और उसकी कैसी धीमी आवाज हम सुनते हैं। कभी आपने जब शाम होती है उसकी आवाज आती है आपको? जब सुबह होती है तो क्या उसकी आवाज आती है? हम उसकी आवाज को नहीं सुनते। खामोशी से शाम हो जाती है, रात हो जाती है और रात के बाद फिर दिन होता है। हमें इस बात का पता तब चलता है जब रोशनी फूटती है और तब अंधेरा होता है। लेकिन इस सर्कल के दौरान, इस फासले के दौरान हमें उसकी आवाज आती है? नहीं आती। आज आगे
पर कौन उसकी कुदरत की गर्ज को समझ सकता है? पर कौन है कोई जो उसकी कुदरत की गर्ज को सुन सकता है? ये उसकी कुदरत है जो उसने हम पर अपना हाथ बढ़ाकर हम पर जाहिर होता है। इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुदा की कुदरत की गर्ज को सुन सके, उसे बना सके, उसे समझ सके, क्योंकि इंसान खुदा के आगे उसने तब उसे जिंदगी बख्शी, उसे इख्तियार दिया, क्योंकि इंसान को शुरू से ही उसने अपने जलाल के लिए बनाया। ये खुदा की कुदरत है, वो किस तरह हम पर जाहिर होता है। फिर इंसान के अंदर अपने आसमानी कानून डालता है, और जब हम उसके कानून को समझते हैं तो इस बात का हमें अंदाजा होता है कि खुदा हम पर जाहिर होता है और अपने आप को हम पर जाहिर करता है अपने कानून के वसीला से, अपने हुक्मों के वसीला से। हम अगर नहीं सुनते, कुछ लोग हैं वो खुदा की बातों पर गौर नहीं करते, हुक्मों पर गौर नहीं करते, लेकिन उनके अंदर इस बात का एहसास होता है कि खुदा की कुदरत है। वो इस बात को मानते भी हैं कि खुदा है, क्योंकि वो जाहिर होता है हर एक इंसान पर, उसकी कुदरत हर एक इंसान पर जाहिर होती है, उसके सांस हर एक इंसान पर जाहिर होते हैं। अगर वो बंद है तो फिर भी सांस लेता है, अगर वो नकामा है तो खुदा अपनी रोशनी जो है उस पर जाहिर करता है। देखिए आप, अगर कोई गुनाहगार शख्स है, बहुत बुरा शख्स है, तो क्या खुदा अपने कानून उसके लिए बदलता है? अपनी रुतों को, अपने ख्यालात को बदलता है? क्योंकि वो जाहिर हर एक इंसान पर होता है। इंसान उसे समझे या ना समझे ये उसकी बात है, लेकिन खुदा की धूप उस पर भी होती है। चांद को वो भी देखता है, तारों को वो भी देखता है, फूलों को देखता है, फजाओं को देखता है, हर एक चीज पर जो खुदा ने खलक की है उस पर अपना इख्तियार रखता है, उस पर भी जाहिर होता है, पर इंसान नहीं समझता। समझिए, आज देखेंगे रोमियो उसका 2 बाब और उसकी 14 से 15 आयत देखेंगे। रोमियो 2 बाब उसकी 14 से 15 आयत आज पढ़ेंगे। इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती, ये गौर से सुने, वो लोग जो खुदा की बातों को नहीं मानते, शरीयत खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, नहीं रखती, अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती है, अपनी मर्जी से। हर कोई बुरा जो आदमी है, क्या कभी बुरे आदमी को देखा है खुदा के काम करते हुए? कभी देखा है? कभी नहीं देखा। अंदाजा लगाने आपके बदले में कोई ऐसा बुरा हो तो क्या आप कहते हैं उसके बारे में कि ये कभी खुदा के काम करते ही नहीं? ऐसे लोग हैं, हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनको हम बुरा कहते हैं, शरीयत के मुताबिक नहीं चलते, खुदा को समझते हैं, खुदा उनकी जिंदगियों पर जाहिर होता है, लेकिन उन्होंने अपनी एक शरीयत लहदा बनाई है, अपने काम उन्होंने अपने लहदा बनाए हुए हैं। समझते सब है, अकल सब है, सबको कल है ना। हम सब यहाँ पर अकलमंद बैठे हैं, अकलमंद है, सब अकलमंद अकल रखते हैं, रोटी को रोटी ही कहते हैं, ऐसे बात है ना। तो अकल है ना हमें। हम किसकी शरीयत पर चलते हैं? खुदा की शरीयत। किसकी शरीयत पर?
خدا کی شریعت پر چلتے ہیں، ہمیں عقل ہے۔ اب آگے ان لوگوں کے لیے جو شریعت اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، ہاں جی آگے وہ اپنے خود کو ایک شریعت ہے، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کا دل ہاں جی ان کا باتوں دل کی گواہی دیتا ہے، لیکن ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں اپنی شریعت کے مطابق جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، لیکن جو ان کے اندر دل ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا پر ظاہر ہوتا ہے۔ مانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ایک مثال ہے یہ کہ رسی جل جائے پر وٹ نہ بل نہ جائے، وہ وٹ نہ جائے، رسی جل جائے پر وہ وٹ نہیں جائے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، مانتے تو ہیں یہ خدا کی قدرت ہے، مانتے ہیں ہمیں جو زندگی دی ہے یہ خدا کی ہے، مانتے ہیں ہم جو کام کرتے ہیں یہ خدا کے جلال کے وسیلہ سے کرتے ہیں، دل ان کا گواہی دیتا ہے کہ خدا ہے پر ان کو مانتے نہیں۔ یہ ان کی شریعت ہے، وہ ان کی شریعتوں کو ایسے لوگوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ ان کے اندر، ان کے دل کے اندر خدا کی طرف تو ہے، ان کے دل خدا کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن شریعت ان کی اپنی ہے۔ خدا ان زندگیوں پر ظاہر ہوتا ہے جو اس کے کلام کو مانتے ہیں۔ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 27 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اعمال کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 27 آیت پڑھیں گے۔ ہاں جی، اعمال کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی، تاکہ خدا کو ڈھونڈے شاید کہ ٹٹول کر اسے پائے۔ تاکہ خدا کو ڈھونڈے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ دوبارہ پڑھیں اس آیت کو، تاکہ خدا کو ڈھونڈے، خدا کو ڈھونڈے اور شاید کہ ٹٹول کر اسے پائے۔ تاکہ ٹٹول کر اسے پائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خدا کا عکس انسان کے ذہن میں دھندلا سا ہے، تصور، خیال، اور جس کا کوئی روپ نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، ایک تصور ہے ہمارے اندر خدا کا، اسے کیسے بنایا جائے، اسے کیسے سینچا جائے، ایک دھندلا پن ہے ذہن کے اندر، دھندلا سا کہ خدا کس طرح کا ہے، خدا کس طرح ہم پر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شکل تو نہ کسی انسان نے دیکھی ہے اور نہ ہی وہ اپنی شکل کسی انسان پر ظاہر کرے۔ یہ پہلے بتایا کہ وہ اپنے کاموں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب خدا کو لکھا ہے کہ اسے ڈھونڈے اور ٹٹولے۔ آسی کسی چیز کو ٹٹول کے پسند کرنے ہیں، ایسی بات ہے، اچھے طریقے سے اسے پرکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں۔ اگر اندھیرا ہو جائے، لائٹ چلی جائے تو چیزوں کو ٹٹول کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بول رہی ہے، ایسی بات ہے نا۔ اور ماچس اگر ڈھونڈنی ہو نا، اندھیرا ہو جائے تو آپ ماچس کو ڈھونڈیں گے، آپ کے ہاتھ میں کپ یا گلاس آئے گا تو آپ اس کو ماچس نہیں سمجھیں گے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ماچس کا ایک عکس ہے، اس کا ایک وجود ہے کہ آپ سوچیں گے کہ وہ کس طرح کی چیز ہے، تو سوچیں اور ٹٹولے کہ خدا کیسا ہے، آپ کے اندر کیسا ہے، وہ کس طرح ظاہر کرتا ہے۔ کبھی ٹٹولا ہے اس کو، کبھی پرکھے ہے، جب آج ہی لگتے رہتے گے۔ یہ آیت سمجھ نہیں آئی آپ،
दोबारा पढ़ें इस आयत को, दोबारा पढ़ें। ताकि खुदा को ढूंढें, खुदा को ढूंढें, शायद कि टटोल कर उसे पाए, क्या कि हम टटोल कर उसे पाए। अचन वो हम में से किसी से दूर नहीं, हाँ, वो हम में से किसी से दूर नहीं है। टटोलो, अपने अंदर में टटोलो, लपो। असल दूसरा ऐप जो नहीं लाते रहे, दूसरे की कमजोरी लाते रहे, ऐसी है। जितना काम, जितना टाइम आप दूसरों बातों को, बुराइयों को, दूसरों की ऐप चोरियों को ढूंढने के लिए खर्च करते हैं, उतना सा टाइम आप खुदा को ढूंढने के लिए खर्च करें तो मेरा ईमान है कि आपको अंदर ही आपका खुदा मिलेगा। हालेलुया, मिलेगा ना? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ये है खुदा का ज़ाहिर होना। खुदा हमारे अंदर है, ये ज़ाहिर होता है, उसकी कुदरत, उसके हर चीज को देखिए। हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि वो पूरी तरह जब आपने इसे टटोला तो हमने पूरी तरह यीशु अल मसीह की शक्ल में उसे पाया। हालेलुया, ये है उसने अपने आप को जाहिर कर ही दिया। किसके वसीला से? यीशु मसीह की सूरत के वसीले, क्योंकि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने दुख उठाए, सलीब पर मुआ, और आज वो हमें पुकारता है कि तैयार हो जाओ, मैं आपके लिए एक ऐसा मददगार भेजूंगा जो रात दिन आपकी रहनुमाई करे, और वो है पाक रूह। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत देखिए। और कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूल होकर जी हमारे दरमियान रहा। वो हमारे दरमियान, हमने उसका ऐसा जलाल देखा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया, हालेलुया। ये है खुदा का जाहिर होना। और अगर लोग मैंने कितने लफ्ज देते रहे, मैं खुद ही चला जाना है जी। कितना एक पसंद है, कितनी एक ऐसी चीज हो जिस चीज की आपको तलाश है, और जिस चीज को आपने सोचा। अमेजिंग करें, आप अपने ज़हन में सोचें कि आप किसी तलाश में सोचते हैं कि ये नामुमकिन है, मैं इसे खरीद नहीं सकता, इसे पा नहीं सकता। ऐसी चीज जो आपके लिए कीमती हो, जिसको आप खरीद ना सके, ना पा सके, तो जब रात को सोए तो सुबह वही चीज आपके पास खड़ी हो तो आप कैसे होंगे, आपकी कैसी तबीयत होगी? हालेलुया, खुशी से उछलेंगे, खुशी से ललकारेंगे और कहेंगे कि बाकी खुदा है। जब हमें खुदा को टटोल रहे थे, परख रहे थे, तो खुदा इब्ने आदम की सूरत में खुद हमारे दरमियान में छिपी, क्योंकि उसका कलाम मुजस्सम हुआ, वो खुद मुजस्सम होकर दुनिया में जाहिर हुआ। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे वह बेटे खुदा के इकलौते का जलाल था। हालेलुया। अब देखिए यूहन्ना पहला बाब और उसकी 18 आयत में फिर वो पूरे दावे के साथ यूहन्ना इस बात को बयान करता है, उसका पूरा दावा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई तोड़ नहीं है। वो फिर पूरे दावे में यूहन्ना की अंजील पहला बाब और उसकी 8 आयत में वो क्या बयान करता है? हाँ जी, वो खुद तो नूर न था, वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। लेकिन इसकी गवाही देने के लिए आया नूर, वो खुद नूर ना था लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया। हाँ जी, आगे। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, वो हकीकी नूर जो हर एक आदमी को क्या करता है?
रोशन करता है जी, दुनिया में आने को था। वो दुनिया में आने को था। ये बड़े दावे के साथ यूहन्ना रसूल इस बात को लिखता है कि फिर वो पूरे दावे के साथ बयान करता है, वो नूर ना था लेकर नूर की सूरत में जाहिर हुआ। नूर की सूरत में जाहिर हुआ। आगे देखेंगे जी, यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी 8 से 11 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि यकीन आज भी कुछ लोग नहीं करते कि खुदा है। यकीन आज भी लोग नहीं करते। वो कौन से लोग हैं? जो बुत परस्ती करते हैं, जो तवीज धागे करते हैं, जो गलत बाबियों के पास जाते हैं, वो आज भी यकीन नहीं करते कि खुदा है। क्योंकि यहां पर एक शागिर्द ने यीशु से पूछा, 14 बाब और उसकी 8 से 11 आयत तक पढ़ेंगे। अच्छा, फिलिप्पस ने उससे कहा, एक शागिर्द जिसका नाम फिलिप्पस था, उसने यीशु से कहा, खुदावन बाप को हमें दिखा। ऐ खुदावन हमें बाप तो दिखा। कितनी बड़ी बात है कि हमें बाप दिखा। हमें खुदा दिखा। हमें क्या दिखा? खुदा दिखा। आप खुदा को देखना चाहते हैं? आपको तो पता होना चाहिए कि खुदा का रूप है, वो आपके अंदर है। आपके उसे टटोले। उस शागिर्द ने कहा, फिलिप्पस ने कहा कि हमें खुदा दिखा। हाँ जी, आगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं जाना? हाँ जी, नहीं जानता? जी, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हाँ, हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आपके अंदर यीशु है? यीशु है? बेटा है तो बाप भी है। हालेलुया। अगर बाप है तो बेटा है, बेटा है तो बाप भी है। हाँ जी, आगे जी। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? जी, क्या तू यकीन नहीं करता? मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में। हाँ जी। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो, मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे जहां पर पहली बात है, पहले हमने किसको जाना है? मसीह। अगर आप खुदा को देखना चाहते हैं तो पहले यीशु को देखेंगे, उसे जाने, उसे समझे। यीशु को जब आप समझेंगे, यीशु को आप जानेंगे, यीशु को आप अपनी जिंदगी में आने का क्या करेंगे? तो फिर जब यीशु आएगा तो फिर खुदा आपके साथ। कि उसने कहा है कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। ये सब काम मैं अपनी मर्जी से नहीं करता, मैं अपने बाप की मर्जी से करता हूं। ये मौजूदा, ये सारी कुदरत, ये सारा जलाल मेरे बाप को जाता है। बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। हालेलुया। आपके अंदर तो अपना दिल भी नहीं है। आपके या दिल है? दिल भी नहीं आप अपने अंदर रखते, वो भी किसी और के नाम से लगाया होगा। तो कैसे बाप आएगा? कैसे यीशु आएगा? आएगा पहले यीशु को ही देखें और फिर देखें बाप खुद ब खुद आएगा। हालेलुया। फिर ये खुदा का कलाम कहता है कि मैं अपना चेहरा उनसे कभी नहीं छुपाऊंगा। वो पाक रूह के जरिए से, पाक रूह के रास्ते पर हम
आप पर जाहिर होगा, फिर तो आप नूरी नूर नजर होगे ना, ऐसा होगा ना, क्या बन जाएंगे? नूर। नाम नूर पर रखने से नूर नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर नूर होना चाहिए। सही, राइट। खुदा कब जाहिर होता है? जब हम उसे अपनाते हैं। हम देखेंगे अपराधियों उसका पहला बाब और उसकी पहली और 3 आयत में देखेंगे। इब्रानियों, हाँ जी पढ़ेंगे। ये पाक रूह का वादा है। पाक रूह यीशु की सूरत में हम पर आएगा, जाहिर होगा। अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा जी और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके, खुदा ने, हम पुराने आयतना में देखें, वो बुजुर्गों के जरिए, बाप दादा के जरिए हमसे बात करता था। खुदा का कलाम इस बात की शहादत देता। हाँ जी, फिर और इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। फिर आखिरी जमाना में उसने अपने बेटे के सूरत पर हम पर जाहिर हुआ, बात की। हाँ जी, आगे। जैसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए जी, और उसकी जलाल का बर्तू और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। संभालता है। हालेलुया। ये यीशु मसीह की बात हो रही है। जब उसने बाप दादा के जरिए से, बुजुर्गों के जरिए से इंसानों से बात करता था, फिर वो खुदा ने बताया कि वो फिर मसीह की सूरत में अपने लोगों पर जाहिर हुआ और उनसे बातें करता था। पाक रूह आपके इर्द गिर्द है। खुदा पाक है, उसकी कुदरत पाक है, उसकी आंख पाक है। वो इंसान को बदी में नहीं रख सकते। हम खुदा को थ्रेट नहीं देख सकते, क्योंकि खुदा हम पर जाहिर होता है, पर हमारे कुछ ऐसे अमाल हैं, कामों के वसीला से हम खुदा को नहीं दे सकते। और उस जगह को देखने के लिए, उस कुदरत को देखने के लिए, उस पाक अबर को देखने के लिए हमें यीशु को पहले देखना है, पहले उसको अपने दिल में जगह देनी है। जब तक यीशु आपकी जिंदगी में जाहिर नहीं होगा, तब तक खुदा आपकी जिंदगी में जाहिर नहीं होगा। जाहिर तो वो हर जगह पर है, हम देखते हैं, हर तरफ देखते हैं, उसकी फजा को देखते हैं, उसकी हाथ की कारीगरी को देखते हैं। आसमान, सूरज, चांद, चरिंद परिंद, इंसान की शक्ल सूरत, दिलो दिमाग, ये बड़े बड़े काम करना, ये खुदा इन चीजों पर जाहिर होता है। तो अगर आपकी जिंदगी में खुदा जाहिर होना चाहता है, अगर आप उसे अपनी जिंदगी में मांगना चाहते हैं, उसे कबूल करना चाहते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, पहले हमें यीशु को अपना दिल देना। वो आपकी जिंदगी पर जाहिर होता है, पर आप उसे टंडोलते नहीं, उसे ढूंढते नहीं। वो हर वक्त आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, लेकिन आप उसको समझते नहीं, उस बात की दरियाफ्त नहीं करते, उस तह तक नहीं पहुंचते। उसने हर लम्हा आपको कीमती सांस दिए हुए हैं। ये सांस जो हम लेते हैं, उन पर खुदा जाहिर होता है। हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, इस बातों से खुदावंद जाहिर होता है। उसकी गरज सुन नहीं सकता इंसान, फिर वो रात को दिन और रात को दिन बनाता है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है,
और वही खुदा है। हालेलुया, वही खुदा है। तो खुदा हम पर जाहिर होता है लेकिन हम महसूस नहीं करते। वो आपके अंदर है, बाहर बातों से दूर। तलाश न कर उसको रुतों में, वो बदलती हुई है रुतों में। हालेलुया, वो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। उस खुदा के लिए जोर से ताली बजाएं जो हम पर हर बात पर काबू होता है और हर बात पर हमें आकाश करता है। वो बहुत खूबसूरत है, उसका तसव्वुर करें, उसकी आपकी कारागिरी को देखें। उसकी खूबसूरती आपको फूलों में नजर आएगी, तितलियों में नजर आएगी, मछलियों में नजर आएगी। वो समुद्रों, दरियाओं, पहाड़ों को बनाने वाला है, उसकी खूबसूरती कितनी बयान है। इंसान जब सोचता है तो उसकी सोच खत्म हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि जहां मेरी सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच बढ़ना शुरू होती है। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। आए मैं आपके लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, खुदा तेरी कुदरत बेपनाह है और तेरी मोहब्बत बेपनाह है। तू खूबसूरत खुदा है और तूने जो के इंसान को अपनी शबीह पर बनाया और खुदावंद उसमें तेरा फजल जाहिर होता है। तेरा आसमान, तेरी ज़मीन, तेरे हाथ की कारीगरी है। ये तेरी दस्तकारी है जो तूने फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से सजाई हुई है। वाकई तू खुदावंद हम पर जाहिर होता है। अब जब तेरी कुदरत को देखते हैं और तेरे ही जलाल का बयान करते हैं कि तू बहुत खूबसूरत खुदा है जो इंसान से मोहब्बत रखता है और उस इंसान को तूने अपनी सूरत से लगा। खुदावंद तेरा शुक्र है आज इस दिन के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरे जाहिर होने के लिए। हमारी जिंदगियों का और हमें तब्दील का, अपने पापों का अमर हमारे दरमियान दे। सब तेरे पाक अजीम और कुदरत वाले नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।